Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More Toma Bina Ke dayalu jagat samsare Toma bina ke dayalu jagat samsare Patita pavana hetu Tavatara Patita pavana hetu Tavatara Mosama patita Prabhu Na kaviyara Ha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Ha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balo Karma Koro Ami Bharadukhi Kripa Balo Karma Koro Ami Bharadukhi Daya Koro Sitapati Advaita Gosai Daya Koro Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Bhale Par Chaitanya Nitya Aha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha Aha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha Bhatta Juga Shri Jiva Prabhu Lokhanatha Bhatta Juga Shri Jiva Prabhu Lokhanatha Daya Karo
Shri Acharya Prabhu Srinivasa Jamakoro Shri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sanghe Bhage Narottama Dasa Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Radha Vallabha Shri Radhe Jai Jagannatha Jai Jagannatha Jai Baladeva Jai Subhadra Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Jayo Jayo Prabhupada Prabhupada Jayo Jayo Prabhupada Jayo Jayo Gurudev Gurudev Jayo Jayo Gurudev Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jayo Jayo Hari Bol
श्री श्री राधा वल्लभ भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय. Okay, so we'll read one each. Huh? So we will read one translation each, and we don't need to read the fifth one because our acharyas don't read the fifth for some reason. I don't have the explanation for that. So we'll just read one. We'll read 1, 2, 3, and somebody can read the others, excluding fifth. Can you? My dear Lord Chaitanya, please be merciful to me, because who can be more merciful than your Lordship within these 3 words? Your incarnation is just to reclaim the conditioned fallen souls, but I assure you that you will not find a greater fallen soul than me. Therefore, my claim is first. My dear Lord Nityananda, you are always joyful in spiritual bliss, since you always appear very happy. I have come to you because I am most unhappy. If you kindly put your glance over me, then I may also become happy. Read. My dear Advaita Prabhu, husband of Sita, you are so kind. Please be merciful to me. If you are kind to me, naturally Lord Chaitanya and Nityananda will also be kind to me. Okay, somebody can read 6 and 7. O Swarup Damodara, personal secretary of Lord Chaitanya, O six Goswami, O Shri Rup Goswami, Shri Sanatan Goswami, Shri Raghunath Bhatt Goswami, Shri Gopal Bhatt Goswami, Shri Jeev Goswami, Shri Raghunath Dasa Goswami, O Loknatha Goswami, my beloved spiritual master, Narottam Dasa, always pray for your mercy. O Srinivasa Acharya, successor to the 6 Goswamis, please be merciful to me. Narottam Das, who always desires the company of Ramachandra Chakravarti. Shri Panchatattva Bhagwan ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Just sing Narasimha prayer and then we can begin the class. Namaste Narasimhaya Prahaladalad Daine Hiranyakashi Purvakshaha Shilakankalakalaye Nato Narasimha Parato Narasimha Yato Yamitato Narasimha Bahe Narasimha Hridaye Narasimha Narasimha Madi Sharanam Prapadim Tavakar Kamar Bhare Nato Adbhuta Shingaya Dalita Hiranyakashipu Danubinga Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagdisha Hare Jaya Jagdisha Hare Jaya Jagdisha Hare Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Narahari Jaya Narahari Jaya Narahari Jaya
नरसिम्हा जय लक्ष्मी नरसिम्हा जय लक्ष्मी नरसिम्हा जय लक्ष्मी नरसिम्हा जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल कयोर हरि बोल। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Nishant Prabhu, you can take over. Yeah. सबको स्क्रीन दिख रही है? यस प्रभु दिख रही है। प्रभु स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस दिख रही है। कौन सी, बड़े वाली की छोटी वाली? ब्रह्म संहिता पावर पॉइंट। ओके ठीक। हरे कृष्णा एवरीवन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। All right, Hare Krishna everyone. Welcome to the next session of Brahma Samhita. हमने वर्स 1 में किया था, पहला श्लोक किया था, वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट करेंगे। तो पहले में हमने जो पढ़ा था वो था, किसी को याद है क्या क्या श्लोक था पहला ब्रह्म संहिता का? चलो मैं बताता हूँ। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो हमने इसमें बात की थी, थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ ताकि कॉन्टेक्स्ट बना रहे वो आगे। ईश्वरा परमा कृष्णा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये हमने देखा था कि वो सबसे गॉड जो, जिसमें जो गॉड है वो कृष्णा ही है, बाकी सब डेमी गॉड्स हैं। फिर था सच्चिदानंद विग्रह, तो उनकी हमने फॉर्म के बारे में बात की थी। सत चित और आनंद से उनकी फॉर्म जो है वो बनी हुई है। हमने देखा था कि ना वो इम्पर्सनल हैं
ना वो पर्सनल हैं, वो ट्रांसपर्सनल हैं। तो उनकी मेटीरियल बॉडी नहीं है, उनकी ट्रांसीडेंटल बॉडी है। अनादिर आदिर गोविंदा, इसमें हमने देखा था अनादिर आदिर गोविंदा में कि उनका जो ही इज द फर्स्ट पर्सन बेसिकली, आदि पुरुष, ठीक है। तो उनसे पहले कोई नहीं था, उन्होंने ही सारी सृष्टि का और सबका निर्माण किया। फिर लास्ट में जो था सर्व कारण कारणम, तो वो सभी कारणों के कारण हैं, ठीक है। जितनी भी सृष्टि बनी है वो उन्हीं के कारण बनी है, बट ही इज नॉट द कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स। तो जो कर्म हम कर रहे हैं, हम उनका ब्लेम उस पर नहीं डाल सकते कि वो भी कृष्णा नहीं, सब कुछ भगवान कर रहा है। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था। तो ये देखो, अगर आप चारों जो सेंटेंसेस थे उसमें, चारों लाइंस जो थी उस वर्ष में, वो सारी फोकस थी कृष्णा पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पर अब जो ब्रह्म संहिता आगे चलती है तो इसमें जो फोकस है वो कंप्लीटली चेंज हो रहा है, वो उस पे नहीं है। कृष्णा ऐसे कृष्णा की बात करेंगे, कृष्णा की बात तो होगी, पर ज्यादा फोकस होगा उनके धाम पे। क्योंकि जब ब्रह्मा मेडिटेट कर रहे थे, जब उनको दर्शन हुए तो वो गोलोक वृंदावन में बैठे हुए थे, तो कृष्णा ने उनको अपना धाम दिखाया। तो सारी क्रिएशन और उसके बाद उनके धाम की बात होगी अब सारी। और ऐसा नहीं है कि कृष्णा की बात सिर्फ कृष्णा, अगर कृष्णा की बात करेंगे तभी कृष्ण कथा है। बोलते हैं ना कि कृष्णा और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, ऐसी कृष्णा और उनके धाम में भी कोई अंतर नहीं है। अगर हम उनके धाम की बात कर रहे हैं तो भी हम कृष्णा की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अभी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यही वो बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भी यही बोल रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड हिज प्लेस, देयरफॉर चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड्स आराध्यो भगवान ब्रजेशा तनयास तद्धाम वृंदावनम, एज कृष्णा इज वर्शिपेबल हिज प्लेस इज ऑल्सो वर्शिपेबल। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कृष्णा को ही वर्शिप करते हैं, हम उनके धाम को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। Similarly, as he is all pervading, his place is also all pervading. ये थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है कि हाँ, वो तो हमें समझ में आता था, हमने देखा था कि वो इम्पर्सनल हैं, तो और हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, राइट। तो वो हर जगह व्याप्त हैं, हमने उनका देखा था, परमात्मा फीचर, ब्रह्मन और भगवान, सारी उनकी हमने पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था। तो उनकी प्लेस कैसे ऑल प्रिवेडिंग हो सकती है, तो वो हम अब देखेंगे कि वो इस लोक में भी हैं और वो उस लोक में भी हैं। उनकी जो उनका जो धाम है, उनकी जो बोर्ड है, ठीक है। तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हैं, जैसे गोकुल, मथुरा, वृंदावन, ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। और ये हमारे मटेरियल वर्ल्ड में भी हैं, पर मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि उनकी परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, बट वो सेम है। तो ये देखेंगे। तो अब जो ब्रह्म संहिता है, इसमें क्या है कि जो एक्चुअल जो ब्रह्मा ने स्तुति करी है उनकी, वो स्तुति करी है 28th या 29th वर्ष से करी है, जिसमें वो है गोविंदम आदि पुरुषम तमहां भजामि। तो उससे पहले जो वर्स नंबर 2 से लेकर 28 तक जो वर्सेस है ना, वो सारा तत्व ज्ञान है, मतलब कि क्रिएशन कैसे हुई और वो गोलोक वृंदावन कैसा है और वो उनकी एक्सपेंशंस क्या क्या हैं, वो उन सब की बात की गई है। तो पर कॉन्टेक्स्ट को बिठाने के लिए मैं वर्स नंबर 26 पहले बोलूंगा, ताकि क्योंकि ये थोड़ा जम्बल्ड अप है, ऊपर नीचे है थोड़ा, तो वो 26 वर्स में पहले बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम सारा कवर करेंगे, वर्स सेकंड पे भी आएंगे, थर्ड पे भी आएंगे। तो वर्स नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। आप सबको स्क्रीन में वर्स नंबर 26 दिख रहा है ना, बड़ी स्क्रीन पे? मुझे डाउट क्यों हो रहा बार बार?
तो वो वर्स नंबर 26 तो पता नहीं, पर ये आपकी स्लाइड फर्स्ट या सेकंड स्लाइड दिख रही है जिसमें स्टार्टिंग विद द डिफरेंस बिटवीन देयर इज नो Okay. डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड हिज प्लेस, वो स्लाइड दिख रही है। वो स्लाइड दिख रही है ना? हाँ, मुझे वही डाउट हो रहा था। एक मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने 26 वर्स वाली स्लाइड शेयर करी हुई है। शेयर करने वाला है, शेयर स्क्रीन। अब होगी शायद। अभी हो रही है? 26 वाली स्लाइड दिख रही है अभी? यस, ब्रह्मा बीइंग डिजायरस ऑफ सैटिस्फाइंग गोविंदा। राइट। हाँ, ठीक है। अभी वो पुरानी वाली नहीं दिख रही ना आपको? नहीं। हाँ, बस ठीक है। अब ठीक हुआ, मुझे लग रहा था कि मैंने शायद गलत शेयर कर दिया है। ठीक है, तो वर्स नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा, being desirous of satisfying Govinda, practiced the cultural acts for Krishna in Goloka, Lord of Shwet Dweep, for a long time. हमने देखा था कि बहुत लंबे समय से वो मेडिटेशन कर रहे हैं कृष्णा के नाम पे। His meditation ran thus: There exists a divine lotus of 1,000 petals, augmented by millions of filaments, in the transcendental land of Goloka. On its whirl, there exists a great divine throne on which is seated Sri Krishna, the form of eternal effulgence of transcendental bliss. Playing on his divine flute, resonant with the divine sound, with his lotus mouth, he is worshipped by his amorous milkmaids with their respective subjective portions and extensions, and also by his external energy, who stays outside, embodying all mundane qualities. तो डरना नहीं है, इसको पढ़ के मैं डर गया था, पर अब क्योंकि ये बहुत अजीब सा लग रहा है ना ये पढ़ के कि क्या लिखा हुआ है ये, तो ये ब्रह्म संहिता एक्चुअली है ही ऐसी थोड़ी। तो ये पढ़ने के बाद तो मुझे ना श्रीला प्रभुपाद की जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने जो बाकी बुक्स, ये बुक जो लिखी हुई है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखी है, तो ये जो इंग्लिश है ये उनकी इंग्लिश है। तो इसके कंपैरिजन में श्रीला प्रभुपाद की बुक्स इतनी सिंपल लगती हैं कि मतलब उनकी इतनी मर्जी है कि उन्होंने पहले तो संस्कृत से ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और इंग्लिश भी वो वाली लिखी उन्होंने जो हम जैसे लोगों को समझ में आ सके। ये चीज तो समझ में नहीं आती, तो फिर भी हमने लेक्चर सुन के थोड़ा मैंने जो बनाया वो बात करते हैं उसके बारे में। तो इसमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि अभी उनकी जो मेडिटेशन स्टार्ट हुई है तो उसको उनको वो गोलोका दिखना शुरू हुआ है और सेंटर में श्री कृष्णा बैठे हैं और उनकी फॉर्म क्या है। अब इसमें कृष्णा की बहुत सारी फॉर्म्स के बारे में बात हुई है और उनकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं और बहुत सारे उनके धाम हैं, जैसे मथुरा धाम, द्वारका धाम, वृंदावन धाम, ऐसे बहुत सारे धाम हैं उनके और बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो कोई बताना चाहेगा कि उनकी इतनी सारी फॉर्म्स क्यों हैं? Why so many different forms? Okay, हमने पूरा एक लेक्चर उन पे फॉर्म्स पे लिया था लास्ट टाइम। Because Krishna takes different forms based on the time, place, circumstances to attract his devotees. Right, exactly. To reciprocate the love with his devotees, वो इतने मर्सीफुल हैं कि जैसे भक्त उनको बुलाता है वो उसी फॉर्म में आ जाते हैं बेचारे। उनको प्रहलाद महाराज को बचाना था तो कंडीशन ऐसी थी कि उनको नरसिंह बन के आना पड़ा, तो वो नरसिंह अवतार लेकर आ गए। ठीक है, कई लोग लड्डू गोपाल बन के उनको बोलते हैं। साउथ इंडिया में आपको श्री कृष्णा का टेम्पल ही नहीं मिलेगा, वहां पे कोई राधा वल्लभ या लक्ष्मी नारायण उसमें मिलेंगे। राजस्थान या इधर उधर राजस्थान में या हरियाणा में वो खाटू श्याम करके मिलेंगे। तो डिफरेंट उनकी उसमें वो आपको मिलेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो 9th चैप्टर में यही लिखा हुआ है
त्वं भक्ति योगा परिभाविता हृत सरोजा आसे श्रुत शेता पाठो नानु नाथ पुंसाम यद यद धिया त उर्गाया विभावयन्ति तत्तद वापु प्रणायासे सद अनुग्रहा. O my Lord, your devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their heart becomes cleansed. You take your seat there. You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in a particular eternal form of transcendence in which they always think of you. तो जैसे मैंने कहा कि वो इतने मर्सीफुल हैं, तो डिवोटीज जैसे उनको देखना चाहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं वैसे ही आ जाता हूँ आपको. तो ऐसे ही उनका जो धाम है वो भी वैसे ही है. तो उनका धाम जहां जहां वो आते हैं, जिस जिस फॉर्म में, उनका धाम उनके साथ आता है. जैसे कहते हैं ना कि अवतारी हैं वो, ठीक है, वो जब आते हैं वो अपने अकेले नहीं आते, वो अपने एसोसिएट्स के साथ आते हैं. तो जब वो अपने एसोसिएट्स के साथ आते हैं तो धाम भी एक तरह से उनका एक लाइव है. वो धाम जो ऐसा नहीं, उसको ऐसे नहीं समझ सकते कि धाम है जी ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ऐसा नहीं है. दैट्स अ फुली कॉन्शियस बीइंग. वो हम आगे आएगा, श्लोक भी आएगा और उसमें वो बताया गया है कि वो जो आपका धाम है वो लाइव है, तो वो उनके साथ ही चलता है जहां जहां वो जाते हैं. और श्रीला प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि यार हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमें उनके नाम पता है, उनकी फॉर्म्स पता है, उनके पेरेंट्स कहाँ हैं हमें वो पता है, उनका वो क्या करते हैं अपने धाम में वो हमें पता है. तो किसी और रिलीजन में भगवान की इतना पता ही नहीं किसी को कि क्या क्या है उनके धाम, कहाँ कहाँ है. अभी आगे जाके और डिटेल्स में जाएंगे हम तो पता चलेगा कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की हुई है हमारे वेदास ने. और हमारे 94% to 95% हमारे वेदास लॉस्ट हो चुके हैं. स्टिल हमें कितना कुछ पता है कृष्णा के बारे में. ब्रह्म संहिता ही ले लो, ब्रह्म संहिता के 100 चैप्टर्स हैं. 100 चैप्टर्स में से सिर्फ 5th चैप्टर हमारे पास एक्सेसिबल है. और अब हम देखेंगे कि 5th चैप्टर में ही इतनी इंफॉर्मेशन, इतना कुछ इतना ज्यादा है कि वो हमें इनकंसीवेबल है हमारे लिए. तो अब ये पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है कि गोलोका वृंदावन है, क्यों है. तो हमें इसलिए जानना है क्योंकि हमारा एक्चुअली हमारी प्लेस वही है, हम वहीं से ही आए हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि हमने वापस कहाँ जाना है. अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तभी हमारी इच्छा और होगी वहां जाने की. तो इसमें श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर से उठाया ये न्यू दिल्ली में जो उन्होंने लिया था 1971 में. तो सो इफ यू आर ट्रांसफर्ड टू, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक बनाया कि अगर आपको जाना है वहां पे, सो इफ यू आर ट्रांसफर्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स. Like we have got planets in this material world. Same way, beyond the sky also there are so many planets. Beyond the sky there is another spiritual sky. That information is there in the Bhagavad Gita. Paras tasmat tu bhavaha anyay vyakto vyaktyaat sanatanaha. There is another sky which is eternal. It is beyond this manifested and non-manifested material cosmic world. So in that world, nothing is vanquished. Everything is permanent, eternal. The Jiva, the living entity, is eternal, and the Krishna is also eternal. And his abode, Vaikuntha Dham or Golok Vrindavan Dham, is also eternal. तो इसमें क्या बताया उन्होंने कि जो मैंने आई थिंक पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि एक नीचे मटेरियल वर्ल्ड है जिसमें वो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स आते हैं, और उसके ऊपर विराजा रिवर के ऊपर जो आता है वो वैकुंठ धाम, फिर गोलोक का वृंदावन. तो विराजा रिवर से जो ऊपर आता है वो एटर्नल है, वो कभी भी वो वैंक्विश नहीं होता, कभी भी वो खत्म नहीं होता, वो एटर्नल है. जबकि जो ये है, ये ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा के जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तब वो खत्म हो जाता है. या कह सकते हो महाविष्णु की एक ब्रेथ के साथ ये सारा कॉस्मिक वर्ल्ड खत्म हो जाता है. तो
ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो हमारे में जनरली वो बोलते हैं कि यार ये जो इसका बताने का पर्पस क्या है बेसिकली, कि जो कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो लोगों को पता ही नहीं है कि यार, लोग बोलते हैं कि यार क्या है यहाँ पे, इतना बीमारियां हैं, इतनी वॉर्स हो रही हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, इम्परफेक्ट वर्ल्ड है। ये बनाया है भगवान ने, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये इतना, अगर भगवान एग्जिस्ट करता होता तो इतने दुख क्यों आते हमें। तो अथीस्ट्स जो हैं बेसिकली, जो भगवान को नहीं मानते, तो वो ये तर्क देते हैं कि कहाँ है भगवान, बताओ। अगर भगवान है तो इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं दुनिया में, इतने ये कोरोना वायरस क्यों है। तो उसका आंसर ये है कि ये जो जगत बनाया है, ये भगवान ने रहने के लिए बनाया ही नहीं है, ये जेल है बेसिकली। तो हम देखेंगे आगे कि एक पाद और त्रिपाद विभूति आगे आएगा। तो ये जो बनाया है, ये जस्ट एक तरह से श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल है ये। हम लोग समझते हैं कि ये होटल है, हम सोचते हैं कि होटल में बैठे हुए हैं हम, तो हमारी सर्विस होगी और खाना आएगा हमें, वो खाना टेस्टी होना चाहिए। बट नहीं, खाना टेस्टी होता ही नहीं है, ठीक है। वो हॉस्पिटल का खाना है, वो आपको ठीक करने के लिए है। तो हॉस्पिटल में आए हो आप या जेल में आए हो, तो वो वहां से खाना खाओ, ठीक हो, और वापस जो आपका एक्चुअल घर है वहां पे जाओ, जो कि परमानेंट है और इटर्नल है। जो कि परमानेंट और इटर्नल है, ठीक है। तो पर हम इस बात को समझ नहीं पाते। हमें चाहिए कि ये जो है ये परफेक्ट होना चाहिए, हमारा मटेरियल वर्ल्ड, हमारी वाइफ परफेक्ट हो, हमारा हस्बैंड परफेक्ट हो, पर हमें परफेक्ट कुछ मिलता नहीं है। और फिर हम क्या होते हैं, विचलित होते हैं कि यार ये क्या है, ये तो है ही नहीं। और हमें इंडियंस को तो खास कर ना बोलते हैं एडजस्ट करो, अरे कुछ नहीं, चलो एडजस्ट करो एडजस्ट करो। और हम कर भी लेते हैं। हम एडजस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, ये कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, तो हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। जबकि वेस्टर्न्स नहीं इतना एडजस्ट करते, क्यों? उनको पता नहीं है। वो समझते हैं कि यही वर्ल्ड बनाया हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि राजा रिवर से ऊपर जो एक्चुअल वर्ल्ड है, जो कि परफेक्ट है, अमेजिंग है, उसके बारे में उनको पता नहीं है। पर हमें पता है, इसलिए हम एडजस्ट करके करके अपनी लाइफ ज्यादा बेटर तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, वर्स नंबर 43। अब ये मत सोचना कि मैं डायरेक्टली 26 से 43 पे जंप कर गया हूँ, ये लास्ट है। इससे एक बार कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा, इसके बाद फिर हम सेकंड से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये एक तरह से फाउंडेशन वर्स है, जो ब्रह्मा जी ने इसको गोविंदम आदि पुरुषम, इसको गा के गाते हैं थोड़ा तो अच्छा लगेगा। गोलोक नामनि निजाधामनि तलेश्च तस्या देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते प्रभाव निश्चय विहितास च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो? लोएस्ट ऑफ ऑल इज लोकेटेड देवी धाम, मंडेन वर्ल्ड। तो हमने उस डायग्राम में देखा था, ये इस डायग्राम में हमने देखा था, छोटा क्या, हाँ, इसमें ये देखा था ना हमने, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे कितने सारे ब्रह्मांड हैं, छोटे छोटे अंडे जो महाविष्णु के पोर्स में से निकलते हैं। तो हमने देखा था कि इनकी जो मालकिन है वो है दुर्गा देवी, तो वही यहाँ पे मेंशन्ड है। लोएस्ट ऑफ ऑल इज लोकेटेड देवी धाम, इसको देवी धाम बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड को। जो दुर्गा देवी हैं वो इस पे इसकी मालकिन है, इसको कंट्रोल करती है बेसिकली। तो दुर्गा देवी क्या है? परवर्टेड रिफ्लेक्शन है राधा रानी की, जो कि क्या है? अलादनी शक्ति। हमने सब कवर किया हुआ है लास्ट टाइम। तो नेक्स्ट अबव इट इज महेश धाम, अबोर्ड ऑफ महेश। तो ये हमने देखा था, उसके ऊपर ये ब्रह्म ज्योति आती है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर ये आता है कैलाश, जहाँ पे सदाशिव है, ठीक है।
तो ये इसके ऊपर महेश धाम हो गया। महेश धाम के ऊपर क्या आ रहा है? अबव महेश धाम इज प्लेस्ड हरि धाम, अबोर्ड ऑफ हरि। तो ये महेश धाम के ऊपर आ गया हमारा वैकुंठ लोक, इसको हरि धाम बोलते हैं, जहाँ पे नारायण की 400 फॉर्म है। ठीक है। अब एंड अबव देम ऑल इज लोकेटेड कृष्णा's ओन realm named गोलोका। तो इसके ऊपर देखोगे तो ये सारा गोलोका है। ये जो पिंक फ्लावर दिख रहा है ना आपको, लोटस, तो ये जो पिंक लोटस ये पूरा गोलोका है। ठीक है। तो इसके अंदर हम जाएंगे। तो अपनी बेसिकली कुर्सी की पेटी बांध दो, क्योंकि हम डायरेक्ट फ्लाइट ये यहाँ से कहीं जाएगी अपने अर्थ से, अर्थली प्लानिटरी सिस्टम से ये डायरेक्ट हरे कृष्णा हरे रामा करते हुए सीधा हम जाएंगे गोलोक वृंदावन के अंदर। तो ठीक है। And above them all is located Krishna's own realm named Goloka. I adore the primeval Lord Govinda, who has allotted their respective authorities to the rulers of those graded realms. ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या है कि एक वर्ष 43 के बेस पे मैं कैसे मान जाऊं कि गोलोक वृंदावन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, राइट? वो एक श्लोक आपने बोल दिया, वो भी एक बुक के फिफ्थ कोई एक चैप्टर से उठा के। तो देखो, इसको समझने का क्या तरीका है? जब मैं इस्कॉन में आने से पहले मुझे भी सिर्फ वैकुंठा तक पता था, मुझे उसके ऊपर पता ही नहीं था कि उसके ऊपर भी ये होता है गोलोक वृंदावन। इवन जब मैं इस्कॉन में भी नया नया आया तो मैं सोच रहा था ये क्या बोले जा रहे हैं गोलोक वृंदावन। चलो ठीक है, होगा कुछ। पर अब जाके जब पढ़ा है तो धीरे धीरे जब समझ में आती हैं चीजें तो पता चलता है। अब हमने एसएसआर में पढ़ा होगा पहले, राइट, कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है। तो अब हम क्यों माने कि गोलोक वृंदावन है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने खुद देखा है, कृष्णा खुद आए हैं उनकी मेडिटेशन से खुश होके, उनसे हेलो किया उन्होंने और उनको गोलोक वृंदावन दिखाया। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, डायरेक्ट स्पिरिचुअल ट्रांसीडेंटल विजन से उन्होंने फेस टू फेस उनसे वो भगवान को देखा, उन्होंने फेस टू फेस ब्रह्मा जी ने 200 फॉर्म में, और किसी ने नहीं देखा हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा है। ठीक है। तो और ब्रह्मा जी ने ही ये ब्रह्म संहिता लिखी है। तो हमें इसको प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो सबसे ऊपर वाला प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद नेक्स्ट क्या आता है? शब्द प्रमाण। कि आपने जी किसी बुक में से पढ़ा है तो दैट इज और वो बोनाफाइड परंपरा में आ रही है आपकी बुक, और वो एक बोनाफाइड बंदे ने लिखी है, तो वो आता है। उसके बाद फिर आता है अनुमान प्रमाण और तो हमें इसलिए मानना चाहिए, पहला रीजन तो ये है कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ब्रह्मा जी ने खुद देखा है और उसके बाद जो जो उन्होंने देखा है वही उन्होंने लिखा है। चलो फिर भी नहीं मानते हो तो और भी आगे चलते हैं कि कैसे होगा। ये गोलोक का चार्ट है, इस पे हम आते हैं। ये नारद पंचतंत्र में लिखा है, नारद जी ने बोला, द प्रीडोमिनेटर ऑफ द गोपीज गोविंदा, द प्रिंसिपल डेटी ऑफ गोकुला, always enjoys himself in a place called Goloka, in the topmost part of the spiritual sky. तात सर्वोपरि गोलोके तत्र लोकपरि स्वयं विहारेत परमानंदी गोविंदो तुला नायकः। सर्वोपरि, सर्वोपरि मीन्स टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर गोलोका है जहां पे वो रहते हैं। ये नारद पंचतंत्र में मेंशन है। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। फिर मोक्ष धर्म में और स्कंद पुराण में कृष्णा ने खुद बोला है, मोक्ष धर्म में स्कंद पुराण में क्या बोला है? ओ अर्जुन, I appear in many different forms on earth planet, in the spiritual world of Vaikuntha and in the eternal abode of Goloka Vrindavan. गोलोकम च सनातनम, इटर्नल है, जो गोलोक है वो इटर्नल है, तो मैं वहां पे भी एग्जिस्ट करता हूँ।
ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स हमने डिस्कस किया, मल्टीपल फॉर्म्स में डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट जगह पे वो प्रिजाइड करते हैं। फिर आता है श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में, इसमें क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, इन गोलोका आई रिजाइड, सॉरी कृष्णा, इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या बोल रहे हैं, in Goloka, I reside having 2 armed form as Krishna along with Radha and other gopis. Here in Vaikuntha, I reside with Kamala and other attendants. तो श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या है कि ब्रह्मा जी ने ये भी जैसे ब्रह्म संहिता ऐसी ही है, तो उन्होंने चैप्टर्स के चैप्टर्स इसमें लिखे हुए हैं जिसमें बड़ी सारी इसकी कृष्णा के अबोर्ड के बारे में, कृष्णा के धाम के बारे में लिखा हुआ है। तो इसकी एक कहानी बताता हूँ। क्या होता है कि एक बार सभी ये जो देवी देवता है ना, ये इंद्र और 33 करोड़ देवी देवता, ये आते हैं ब्रह्मा जी के पास और ये कहते हैं कि हमें अपना धाम दिखाओ प्रभु, हमें आपका धाम देखना, हमने बड़ा सुना है आपके बारे में पर हम कभी देखा नहीं है, हमें दिखा दो। तो वो कहते, और आपको पता है कि ब्रह्मा का जो बोर्ड है ये यहाँ पे सबसे ऊपर आता है, ब्रह्मलोक बोलते हैं, जो हमने सारे वो 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स में देखा था ना, यहाँ नीचे तपलोक, जनलोक, तो उसमें ये सत्यलोक, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर आता है। तो यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा का बोर्ड है ये। तो यहाँ पे वो आए तो उन्होंने कहा कि हमें ये दिखाओ। तो ब्रह्मा ने कहा मेरा बोर्ड क्या देखना आपको, आप देखो कृष्णा का बोर्ड देखो या ऊपर शिव जी का बोर्ड देखो, महेश धाम देखो, शिव धाम देखो, वो कहाँ, वो मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो और जबकि ब्रह्मा का जो टॉप मोस्ट है धाम मटेरियल वर्ल्ड में, उसके अंदर एक कहानी सुनाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ब्रह्मा का धाम क्या है। फिर वो कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, तो पहले आपको उससे कुछ नहीं है से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मा का धाम कैसा दिखता है ना। तो उसकी एक कहानी है। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब इंद्रप्रस्थ को बनाया, राइट, इंद्रप्रस्थ में वो मायाधारक को बुला के वो सब बना रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने अपना वो भवन बनाना था, असेंबली हाउस जिसको बोलते हैं, राइट। तो उसमें उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और नारद मुनि को उन्होंने कहा कि मुझे एक्सप्लेन करो कि जो आप तो सब जगह घूमते हो, तो आपने तो सबके धाम देखे हुए हैं, सबके असेंबली हाउसेस देखे हुए हैं, तो आप मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो सारे। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है। तो नारद मुनि एक्सप्लेन करने लगते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले उन्होंने इंद्रलोक बताया, फिर उन्होंने यमलोक बताया, ऐसे ऐसे वो मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी थे उन्होंने वो सारे बताए। फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मलोक, कहते ब्रह्मलोक तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ऑपुलेंट है। तो उन्होंने बोला, युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अच्छा चलो बताओ फिर कैसा है ब्रह्मलोक। बोले मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। कहते अच्छा क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? कहते क्योंकि वो हर रोज अपना रंग और अपनी शेप चेंज कर लेता है। जैसे मैंने बताया ना कि ये जो हायर हायर जितना हम ऊपर जाते रहते हैं, वो प्लैनेट्स हमारे जैसे प्लैनेट्स नहीं होते पत्थर के, और ये सब एक ऐसे पत्थर का गोला पड़ा हुआ है और घूम रहा है ना सन के आसपास, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली कॉन्शियस हैं वो प्लैनेट्स। तो आपने कभी सोच के देखो कि प्लैनेट अपनी शेप चेंज कर रहा है और अपना कलर चेंज कर रहा है। तो इतना अमेजिंग बोर्ड था ब्रह्मा जी का। और पर ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि मेरा क्या देखना, आप मेरा क्या देख रहे हो, आप देखो जाके शिव धाम देखो, शिवलोक देखो। चलो जी वो सब फिर शिवलोक चले गए। शिवलोक जाने के बाद वो बोलते हैं कि अच्छा, शिवलोक कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, आप ऊपर जाओ, विष्णु लोक में जाओ, शिरोदक्षाई विष्णु जी का देखो। तो चलो जी सब उधर चले गए। विष्णु जी कहते मेरे मेरे यहाँ पे क्या है, तुम जाओ आगे गोलोक वृंदावन। तो वो कहते अच्छा चलो, सब इकट्ठे होके ब्रह्मा जी, महेश, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, सब 33 करोड़ देवी देवता सब पहुंच गए गोलोक वृंदावन। तो वहां पे रोक लिया उनको गेट कीपर्स ने वहां पे। तो गेट कीपर्स कौन है, कौन होंगे वहां पे गोलोक वृंदावन में? कोई गेस करना चाहेगा?
जय विजय। जय विजय। हाँ नहीं, मैं यही कैच है वहां पे। जय विजय जो हैं वो वैकुंठा में हैं, हम वैकुंठ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गोलोका की। ठीक है, गोलोका पे गेट कीपर हैं गोपाल। ठीक है, वो गोपाल बेचारे वो खड़े हैं वो स्टिक्स लेके, बोलते हैं हाँ कहाँ आ रहे हो तुम लोग? कहते हैं हम ये देखना है। कहते हैं यहाँ क्या देखना है, भाग जाओ यहाँ से। तो वो सब उनको, अब वो खड़े हैं और वो सिर्फ एक स्टिक से डर गए। आप सोचो कि ये बात बिलीव करने वाली है कि इतने बड़े बड़े देवी देवता आए हैं, डेमी गॉड्स आए हैं, और वो जो गोपाल खड़े हैं वो एक डंडी लेके खड़े हैं, तो उससे डर गए वो। क्यों डर गए, उसके पीछे भी एक कहानी है। अगेन वहां पे आते हैं वापस इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर महाराज के पास। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब वो इंद्रप्रस्थ बनाया, बहुत ही सुंदर माया महल जो बनाया उन्होंने, तो यादव जो थे, वो यादव देखने आए उनको कि यार वाह, बहुत वो बड़े खुश हुए। कहते यार बड़ा अच्छा बनाया है तुमने। कहते हमें भी ऐसा बनाना है, पर हमें इससे भी अच्छा बनाना है। तो कहते बताओ कौन सा सबसे अच्छा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझे बताया था नारद मुनि ने कि इंद्रलोक बहुत अच्छा है। तो वो बोलते कहते ठीक है चलो जी। सारे यादव चले गए स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में, और उनको अच्छा लगा, वो वहां से वो उठा के ले आए इंद्रलोक को फोर्सिबली। उनको सब हरा दिए, वो 33 करोड़ देवी देवता। किसने हरा दिए? यादव्स ने, जो कि अर्थ पे है, मटेरियल वर्ल्ड में, अर्थ पे। वो स्वर्ग से जाके उनको हरा के वो उनका वो छीन कर लेके आके यहाँ पे द्वारका में स्थापित कर दिया। तो वो सब उनको पता था जब वो वहां पे गेट पे खड़े थे कि जो कृष्णा के क्लोज एसोसिएट्स हैं, जैसे यादव बड़े क्लोज एसोसिएट्स थे, उन्हीं के वंशज थे, राइट। तो उनको पावर्स के बारे में पता था। जो कृष्णा के एटर्नल एसोसिएट्स हैं उनके बारे में पता है उनको, तो उन्होंने पंगा नहीं लिया। उन्होंने कहा ठीक है हम विल वेट हियर, तो आप जाके पूछो। तो बेसिकली वो गए अंदर, तो उनकी जो गोपाओं ने गोल्डन स्टिक्स पकड़ी हुई थी, ऊपर डायमंड जड़ा हुआ है, हीरे मोती जड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा चलो आ जाओ। वो अंदर गए, एक रीजन के बाद दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, इतना बड़ा, इतना परफेक्ट, अमेजिंग गोलोक। वहां पे बोलते हैं कि चिंतामणि की रोड्स बनी हुई है। फ्लोर जो है, जो ग्राउंड है, वो चिंतामणि बना हुआ है। अब चिंतामणि क्या चीज है? चिंतामणि एक जेम है। ठीक है, स्टोन कह सकते हो, जेम जो हम डालते हैं नग, है ना। तो चिंतामणि जेम इस मटेरियल वर्ल्ड में तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में अवेलेबल नहीं है। उसकी क्लोजेस्ट जो एग्जांपल यहाँ पे मैं मैच करने के लिए कह सकता हूँ, परवर्टेड रिफ्लेक्शन यू कैन से, दैट इज पारस पत्थर। ठीक है, वो पारस पत्थर किसी के पास होता है तो वो उसको बचा के रखता, होता ही नहीं, मिलता ही नहीं, वैसे तो बहुत रेयर है। तो वो है चिंतामणि। चिंतामणि क्या करती है? जिस भी स्टोन के साथ उसको टच करोगे, किसी भी चीज के साथ उसको टच करोगे, उसको वो सोना बना देगी। ऐसा होता है चिंतामणि जेम। तो वहां पे जाके देखते हैं कि वो जो रोड्स हैं, जो फ्लोर है, वही चिंतामणि की बनी हुई है। घर जो बने हुए हैं वो चिंतामणि के बने हुए हैं। तो वो हैरान रह जाते हैं देख के कि ये क्या हो रहा है, कि इतना 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 एक्सपेंसिव, जहाँ हमें देखने को नहीं मिलता, इतना सा नहीं मिलता, ये इनको कोई कदर ही नहीं है। गोपियों के, गोपास के पैरों में है वो चिंतामणि। तो और जो वहां पे मिट्टी है, तो उसमें से चंदन की खुशबू आ रही है, और कोई बॉदर ही नहीं कर रहा। वैकुंठ बोलते हैं, जबकि ये बोलते हैं कि वैकुंठा जो है वो बहुत ऑप्युलेंट प्लैनेट है, और गोलोका में रस मिलते हैं, लव एसोसिएशन मिलती है। वैकुंठ, अगर आपको ऑप्युलेंसेस चाहिए तो वैकुंठा पे मेडिटेट करो। अगर आपको एसोसिएशन, कृष्णा की एसोसिएशन और लव चाहिए, तो आप गोलोक वृंदावन पे मेडिटेट करो, उधर जाने के लिए अपने आप को करो। पर यहाँ पे क्या है कि उन्होंने देखा कि तो वैकुंठा से कहीं कहीं ज्यादा ऑप्युलेंट है, पर वो बॉदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको उससे भी हायर कृष्णा का टेस्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो वहां पे कल्प वृक्ष हैं, वहां पे इवन कृष्णा भी, इतनी सारी ज्वेलरी है, जेम्स ऐसे गिरे पड़े हैं फ्लोर पे। ठीक है, वो कृष्णा ऊपर वो नहीं डाल रहे हैं। कृष्णा क्या डाल रहे हैं? अपने इयररिंग्स जो डाल रहे हैं वो फूलों के बने हुए डाल रहे हैं। ठीक है, फिर वहां पे बताया गया है कि वो सुरभि काउज हैं। तो बेसिकली उसमें उन्होंने बताया कि 4 तरह की
काउज हैं, वाइट, ब्लैक, रेड एंड ब्लू। तो ये 4 तरह की काउज हैं और इन 4 तरह की डिविजन्स के आगे आगे 25 वैरायटीज और हैं इनकी। तो 25 × 4 हो गई 100, ठीक है। और फिर 8 तरह की और अलग तरह की काउज हैं जिनकी जो शेप है वो ऐसे लॉन्ग मृदंगा की तरह शेप है जिनकी। तो 108 तरह की वहां पे काउज हैं, इसीलिए हम 108 उसमें जपा बीड्स हैं। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि इतना इतना परफेक्ट वर्ल्ड है, हमें ये इतना सब कुछ बताने की, इतना सब कुछ लिखने की क्या क्यों पढ़ने की जरूरत है, ताकि हमारे अंदर वो डिजायर डेवलप हो कि हम वहां जाएं, ठीक है। तो चलो, इंद्रा ने फिर देखा वो सब कुछ और इंद्रा ने बाद में कहा कि यार अपने डेमीगॉड्स को कि विराजा रिवर से नीचे इस डेजर्ट, उससे नीचे सब कुछ रेगिस्तान है, ऊपर ही है जो भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोपरि श्री गोलोक ब्रजलोक धाम श्री गोलोक श्वेतद्वीप वृंदावन नाम। तो एक और बेसिकली रेफरेंस है जिसमें ये बताया गया है कि गोलोक वृंदावन इज द टॉप मोस्ट। ये आदि लीला से लिया है, चैतन्य चरितामृत की, उसमें भी ये एस्टेब्लिश किया है कि श्री गोकुला इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल, इज कॉल्ड ब्रज, गोलोक, श्वेतद्वीप और वृंदावन। कुछ भी बोलो तो वो एक ही बात है। उसके बाद हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने भी ये हमारी SSR में मेंशन किया है कि लॉर्ड कृष्णा एंड हिज abode exists and one can go there, one can reach him, associate with him, that is a fact, ठीक है। वो फैक्ट है गोलोका। वही हम बात कर रहे थे ना कि एक्चुअली में गोलोका एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो देख लो कितने सारे लोगों ने बोल दिया है। स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ठीक है, फिर ये चैतन्य चरितामृत, अब फिर ये प्रभुपाद जी ने भी बोल दिया है कि वो एग्जिस्ट करता है, तो मान जाना कि एग्जिस्ट करता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं और रेफरेंस लेके आऊंगा। So, spiritual life means to be in association with the Supreme Lord and to exist in bliss and knowledge eternally. Such eternal association means to play with Krishna, to dance with Krishna, to love Krishna, or Krishna can become your child, whatever you like. तो सारे इसमें रस आपको मिलेंगे, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल में वर्स 1 के बाद वर्स 2 पे। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट हो गया बताने का कि क्या डिविजन्स हैं बेसिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड की और गोलोक वृंदावन कहाँ एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अब वर्स 2 पे चलते हैं, जो कि है सहस्र पत्र कमलम गोकुल आख्यम महत्पदम तत्कारणिकारम तद्धाम तद अनंतंश संभवम। अब इसमें क्या बोला है? The spiritual place of transcendental pastimes of Krishna is portrayed in the second verse. The super excellent station of Krishna, which is known as Gokula, has thousands of petals and corolla like that of a lotus sprouted from a part of his infinitary aspect, the whirl of the leaves being the actual abode of Krishna. तो जो कृष्णा का जो बताया गया है कि वो बताया गया कि बहुत सारे, अब इसमें सहस्र लिखा हुआ है, तो सहस्र क्या होता है? सहस्र जब संस्कृत, वैसे तो इसका सहस्र का मतलब होता है थाउजेंड, पर जब संस्कृत में सहस्र वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट, सहस्र, बहुत ज्यादा, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो सहस्र पत्र, तो इतने सारे पेटल्स हैं लोटस लीव्स के, जो कि एक पेटल एक धाम है। वो आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो उसमें और क्लियर होगा। और ठीक है, तो ये इसमें गोकुल की बात की है, राइट, उन्होंने, नोन एज गोकुला। तो
अब आप बोलोगे कि गोकुल तो यहाँ पे भी है एक, तो वही मैंने जैसे बताया कि जब वो आते हैं तो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में धाम है, तो जब वो मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो अपना उनका धाम भी साथ में ही आ जाता है। तो वो उस गोकुल में और इस गोकुल में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। ये हमारे आचार्य ने ये बताया कि जैसे बाकी एसोसिएट्स उनको सर्व करने आते हैं, ऐसे उनका धाम भी उनको सर्व करने आता है। सिर्फ एक डिफरेंस है रसाज में, वो रसाज में हम बाद में आते हैं अभी कि क्या क्या रसा है उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और कैसे वो मैनिफेस्ट होते हैं। अब इसमें बेसिकली इसके परपोर्ट्स में जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया है वो एक पाद और त्रिपाद विभूति के बारे में बताया है, जो मैं पहले भी बात कर रहा था। अब हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है, मैं एक बार वो डायग्राम ही दिखाता हूँ आपको, शेयर करता हूँ, एक मिनट। डायग्राम इतना बड़ा है ना कि वो आई थिंक वो ऐसे ही खोल के शेयर हो पाएगा। आपको दिख रहा है क्या मेरी स्क्रीन पे वो डायग्राम सा? गोलों का चार्ट। गोलों का चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ प्रभु। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था, हाँ, एक पाद और त्रिपाद विभूति की। तो अब एक पाद विभूति क्या है? 1/4 ऑफ द टोटल कॉस्मोस। तो पूरा जो कॉस्मोस है हमारा वो है टोटल जैसे 1 है, तो जो मटेरियल वर्ल्ड है वो 1/4 है, और ये जो बाकी है जहाँ पे ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड विराजा रिवर से ऊपर ब्रह्म ज्योति के ऊपर जो है वो सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, दैट इज 3/4। तो आप ये देखो, ये जो इतना पूरा ब्रह्मांड है जिसमें के पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, और ये ऐसा एक अंडा नहीं, ऐसे अनगिनत अंडे हैं, उसको ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ 1/4 है। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि अगर ये 1/4 है तो ये कितना होगा, कितना बड़ा और कितना भव्य होगा ये चीज। तो इसमें हम भागवत में भी हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ सोल्स हैं जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं वो दे आर फाइनाइट, उनको आप गिन सकते हो कितनी है, जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो नंबर ऑफ सोल्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। और इसका जो साइज है 1/4 वो हमने देख लिया, 1/4 है, और इसका जो है वो 3/4 है। और यहाँ पे जो जितने भी जीवा हैं वो मोड ऑफ नेचर से बंधे हुए हैं, या तो वो मोड ऑफ पैशन में काम करते हैं या इग्नोरेंस में काम करते हैं। बहुत कम है जो मोड ऑफ थोड़ा गुडनेस में आते हैं, जबकि यहाँ पे जो सोल्स हैं जितनी भी, वो सारी मोड ऑफ प्योर गुडनेस में है। और यहाँ पे लोगों को एंजाइटी है, फियर है, क्योंकि यहाँ पे अविद्या है, जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग जो हैं वो भोगी हैं, वो सोचते हैं कि हाँ भाई मुझे ही सर्व करो, मैं ही सर्व, मैं ही एंजॉय, आई एम द एंजॉयर। जबकि वहां पे क्या है, सब लोग कृष्णा को सर्व करने में लगे हुए हैं। इवन प्लेनेट तक जो है वो भी कृष्णा को सर्व कर रहा है। वो देखते हैं आगे कैसे कर रहा है, वो बताएंगे। तो मैं दोबारा से स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ।
नहीं क्या हो गया। अभी स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? दिख रही है क्या स्क्रीन? Yes, Prabhu. कौन सी वाली स्क्रीन दिख रही है? First. श्रीलभ, Now the Supreme Abode. Now verse 2. वर्स 2 दिख रहा है ना? राइट, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो हाँ, तो जैसे कि इंडिया में देखते हो कि कोई भी अगर अमीर बंदा है तो उसका घर भी बहुत बड़ा होता है, राइट? तो ऐसी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो उनका जो धाम है वो भी बहुत बड़ा है, वो बहुत भव्य है, ठीक है। और जिसमें जैसे मैंने आपको पेटल्स दिखाए हैं, उसके आगे दिखाता हूँ। तो ओके, तो हम इसमें क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो उनका जो प्लैनेट है वो कॉन्शियस है। कॉन्शियस का मतलब क्या है कि वो भी चेंज होता है। तो चेंज कैसे होता है कि अब जैसे कृष्णा सुबह उठे हैं वहां पे गोलोका में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो नंदगांव में उठे। वो नंदगांव से उठ के उन्होंने कहते मेरे को जाना है गोवर्धन जाना है काउस को लेके, ठीक है। तो नंदगांव से गोवर्धन कितना 20 किलोमीटर हो गया। 20 किलोमीटर, उसके बाद गाय को पानी पिलाने के लिए यमुना, वृंदावन, फिर आगे 15-20 किलोमीटर हो गया। उसके बाद फिर वापस ये राउंड सर्कल और वापस शाम को नंदगांव में, तो टोटल 70-80 किलोमीटर हो गया। तो वो पेटल्स क्या करते हैं, ऐसे लोटस के पेटल्स हैं, तो ये नंदगांव है, ये वृंदावन है, ये गोवर्धन है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो इतना 20 किलोमीटर नहीं चलना पड़ता, वो एक स्टेप लेते हैं, चलो नंदगांव से आप वृंदावन आ गए, फिर गोवर्धन आ गए, एक स्टेप लिया वहां से आ गए, एक स्टेप लिया वापस नंदगांव आ गए। तो ये बताते हैं जा रहे हैं कि वो प्लेनेट जो है वो भी सर्व कर रहा है कि कृष्णा को, कि जैसा, ताकि उनको चलना ना पड़े। वो अलग बात है अगर उनको कोई और रीजन के कारण उनको लंबा रूट लेना है, वो अलग बात है, पर एवरीथिंग इज फॉर लॉर्ड्स प्लेजर। Whereas हम जैसे हम क्या करते हैं, हमें अपनी प्लेजर के लिए चाहिए। वहां पे बोलते हैं कि जो फ्रूट्स भी है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जैसे अगर हमें यहाँ पे तो सर्दियों में अगर हमने मैंगो खाने का दिल कर रहा है तो नहीं मिलेगा, राइट? पर कृष्णा अगर वहां पे कहेंगे मैंगो चाहिए, तो कल्प वृक्ष से मैंगो आ जाएगा। और वहां पे जीवक गोस्वामी अपने संदर्भ में बताते हैं कि वो जो वहां पे फ्रूट्स भी है ना, वो फ्रूट्स तुम ऐसे ही खा सकते हो, उसके अंदर आपको सीड्स नहीं मिलेंगे, उसके अंदर आपको कोई छिलका नहीं मिलेगा, कोई बैड पोर्शन नहीं मिलेगा, एज इट इज वो फ्रूट उठा के आप खा सकते हो। और क्या बताया उन्होंने कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जैसे हमारी कार्स में होता है ना यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वहां पे पूरे का पूरा प्लेनेट ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कर रहा है। अगर गर्मी हो रही है ज्यादा तो अपने आप वो ठंडा हो जाएगा। सबको पता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है कि कृष्णा वहां पे जैसे अपने गोपास के साथ खेलते हैं, तो हाइड एंड सीक खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल, खेल रहे होते हैं तो वो हमेशा हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि कृष्णा जहां जहां जाते हैं वहां पे फूल पत्ते ऐसे खिल खिल उठते हैं, फ्रूट्स गिरने लग जाते हैं वहां से। तो अच्छा, गोपाल को पता है, अच्छा वहां गए, वहां पे फ्रूट्स गिरे हुए हैं और वहां पे वो फूल एकदम अच्छे हैं, खुश खुश हैं फूल, तो वहां पे कृष्णा लोग को ढूंढ लेते हैं।
तो हमेशा वहां पे वो हार रहे हैं हाइड एंड सीक में। तो अगर आपको जाना है वहां खेलने उनके साथ तो जा सकते हो वहां। फिर क्या है कि वहां पे अनलिमिटेड दूध की नदियां बह रही हैं। कृष्णा बांसुरी बजा रहे हैं और वो दूध, सुरभि काउज है वहां पे, वो इतना दूध निकल रहा है, इतना दूध निकल रहा है कि वो गोकुल से निकल के बाहर जा रहा है। बाहर जाके उन्होंने श्वेत द्वीप बना दिया है। मैं अभी फोटो दिखाऊंगा, उसमें क्लियर होगा कि श्वेत द्वीप क्या है कि लोटस, फिर वो क्या है कि जो पूरा पूरा बोर्ड है लोटस का वो तैर रहा है इसके अंदर ओशन ऑफ मिल्क में। तो एक हमारे पास ओशन ऑफ मिल्क है क्षीरोदक्षाई विष्णु का, तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि जीव गोस्वामी के वो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु का ओशन है, वो जो उसमें जो मिल्क है वो उन्होंने खुद से निकाला हुआ है, पर ये वाला जो ये हाई क्वालिटी मिल्क है, काउस का मिल्क है। तो शिला प्रभुपाद भी कहते हैं अगर आपको वहां पे कल्प वृक्ष, समोसा और कचौरी भी देते हैं, अगर ये रीजन अगर पसंद है आपको तो ये भी रीजन है वहां जाने का। और गोल्ड जो है वो सबसे प्योर माना जाता है मटेरियल वर्ल्ड में, सबसे प्योर एलिमेंट है गोल्ड। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोल्ड है वो फ्रेग्रेंस भी देता है ठीक है। तो और अब आते हैं कि ये सब कुछ वापस बैक टू इस श्लोक पे आते हैं कि ये जो धाम बनाया है तद अनंत अंशा अंश, तो अनंत अंशा संभवम, ये जो सारा धाम संभव हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द अनंत अंश। अब अनंत अंश क्या है इसमें, अनंत क्या है, बलराम। तो फर्स्ट अंश क्या होता है, एक्सपेंशन। तो कृष्णा की जो फर्स्ट एक्सपेंशन है बलराम, वो बलराम ने ये सारा जो प्लेनेट है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये उन्होंने बनाया है। और बलराम क्या है, कृष्णा की संधिनी शक्ति। तीन शक्तियां ना कृष्णा की, संधिनी, संवित और अलादिनी। तो संधिनी क्या है, सत, संवित क्या है, चित, और अलादिनी क्या है, आनंद। राधा रानी क्या है, अलादिनी शक्ति। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा फ्राइडे के लिए, वैसे ही 8 बजने वाले हैं, तो मैं जल्दी से इसको खत्म करूंगा। तो क्या है, बलराम जो है वो संधिनी संधिनी शक्ति है जो कि क्रिएट करती है, मैनिफेस्ट करती हैं सब धाम के। तो जैसे ही कृष्णा की फर्स्ट एक्सपेंशन हुई, तो कृष्णा में और बलराम में अगेन कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम पर्सन है, दे आर द सेम पर्सन, कृष्ण बलराम सेम पर्सन है। सिर्फ एक डिफरेंस है, कृष्णा इज द फर्स्ट कैंडल, उस कैंडल से दूसरी कैंडल जला ली तो वो बन गए बलराम। तो आप पूछोगे क्या कि क्यों कर रहे हैं एक्सपैंड अपने आप को, क्या जरूरत है एक्सपैंड करने की। तो कृष्णा ने एक्सपैंड किया है टू इंक्रीज हिज ब्लिस, टू इंक्रीज हिज मर्सी, टू इंक्रीज हिज हैप्पीनेस। तो तभी बोलते हैं ना कि बलराम इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। तो अपनी ब्लिसफुलनेस और अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए बलराम की एक्सपेंशन हुई है। और बलराम जी की कॉन्शियसनेस क्या है, ऑलवेज टू प्लीज कृष्णा, कैसे कृष्णा को प्लीज किया जाए। जब राम भगवान जी आए तो उनके साथ लक्ष्मण आए हैं, लक्ष्मण ने क्या किया, सिर्फ अपनी सारी जिंदगी सर्व किया है राम भगवान को। जब कृष्णा ने नारायण फॉर्म में या उसमें क्षीरोदक्षाई विष्णु के फॉर्म में लेटना है तो नीचे अनंत शेष बन के बलराम जी। इवन मृदंगा भी बोलते हैं कि मृदंगा में भी हमारे बलराम जी हैं, मृदंगा को बलराम बोलते हैं, राइट। तो जो बलराम जी हैं उनकी 5 रसाज हैं जिनसे वो कृष्णा को प्लीज करते हैं, शांति रस, साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस एंड वात्सल्य रस। तो रसास पे हम और भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी पढ़ा तो है काफी और, पर आई थिंक विल स्टॉप हियर, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा फ्राइडे के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स यहाँ तक, अभी आगे डिस्कस करेंगे। वर्स 3, 4 काफी पढ़ा था।
बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे। प्रभु जी, आई एम इन लव विद ब्रह्म संहिता नाउ समहाउ। वरना एक बस की बात ही नहीं थी पढ़ने की। थैंक यू प्रभु, हाँ, मेकिंग इट सो इंटरेस्टिंग। लेक्चर्स ही हैं प्रभु। मेरे को भी, मैंने भी जब पढ़ा तो मैंने भी स्वर्ण कृष्ण प्रभु से बोला कि मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तो सीधा 28-29 से स्टार्ट करूंगा, जहाँ से वो एक्चुअल वो गोविंदम आदि पुरुषम है। तो लकीली कुछ लेक्चर्स एक दो इधर उधर से मिल गए, तो मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है। बहुत ही बढ़िया प्रभु, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। प्रभु जी सीरियसली बहुत ही अच्छी क्लास थी, ब्रह्म संहिता पढ़ने का मन कर रहा है। अच्छा, एक क्विक अनाउंसमेंट है कि अगली जो क्लास होगी ना, दैट विल बी लास्ट क्लास फॉर दिस ईयर। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड वीक ऑफ जनवरी पे। हाँ, तो 2 वीक की छुट्टी हो जाएगी शायद बीच में, है ना। और अगर प्रभु इन पर्सन क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज? अब तो इन पर्सन भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, स्वर्ण कृष्ण प्रभु, आप बताओ क्या करना है। व्हाटएवर प्रभु बोल रहे हैं वही करेंगे। We'll think about it. We can't take this decision independent of temple. So because this is a temple run program, right? So we can't take that decision on our own. We have to check with the temple. Okay, Prabhu. Okay. Yeah. ठीक है, और कोई क्वेश्चंस, More than डाउट्स तो नहीं है? Brijesh Prabhu, I think it will be more than 2 weeks off. 3 weeks प्रभु, 3 नहीं, So 18th till I think 25th first and 7th and then 8th 8th ko we can think about the class on 8th. नहीं, that's good. I know what you mean. So we will communicate, but next class will be the last class for this year. Yeah, cool. निशांत प्रभु ने घर अच्छा बनवा लिया पीछे। नया घर ले लिया, बढ़िया लग रहा है। ये ऑफिस वाला एक बैकग्राउंड था, वही मेरे को ध्यान ही नहीं रहा हटाने का। ये कौन आया? ओके प्रभु, ठीक है फिर। चलो ठीक है जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय।